Assalamu alaikum everyone. My name is Rafina Farhan and today the topic for my presentation is RSA crypto system. My project partners are Bushra Khan, Areed Shahbaz and Ms. Wali Siddiqui. So we'll have a detailed analysis of all the algorithms of the RSA as well as the time complexity. So moving towards, first of all, we'll understand what is crypto system so that later on we can also be able to understand the RSA algorithm. So crypto system is basically encryption and decryption of information. For example, there is a person A and a person B. Person A wants to send a message to person B, but he also wants that message to be hidden from all other people. So what will he do? He will encrypt that message and then send it to the person B. And then after receiving the message, person B will decrypt that message in order to understand what is actually the original message. So crypto system works just like this. It is using various kinds of algorithm in order to encrypt and decrypt information to keep it safe from intruders or any kind of attacks. So crypto system consists of a lot of algorithms, keys and processes. And in this video, we are just going to have a detailed explanation on the RSA algorithm. Uh, Crypto system is just like the rules for secure communication. Now moving towards the type of crypto systems. We have two types of crypto systems. First one is the symmetric key cryptography, which consists of algorithms such as DES, AES, and 3DES. So basically, symmetric key cryptography uses only one kind of key, which is the public key. We have another kind of cryptography which is asymmetric key cryptography, and in this we have algorithms such as RSA, ECC, which is elliptic curve cryptography, and then the digital signature algorithms. So in asymmetric key cryptography we use two types of keys. The first is the public key and then the private key. uh, Public key is used in order to encrypt the message, and then the user who is going to receive the message uses its own private key in order to decrypt that information. So this is the property which makes asymmetric key cryptography more secure. Now, moving towards the RSA crypto system. RSA crypto system is also the public key cryptography which we discussed in the last slide, and it is developed by three of these scientists initials. Like its name is derived from these initials. These were the scientists who took part in generating RSA crypto system. So let us move towards the components of RSA. RSA includes three types of components. First of all, key generation algorithm. Then we have encryption algorithm, and lastly the decryption algorithm. So we will have a detailed analysis of all these components with their algorithms as well as the time complexities. So moving here with the key generation algorithm, as we see in the flowchart over here, that as we start the uh, program, we are generating random numbers over here. There is a predefined function for the random numbers generation. Then we select two large prime numbers. अच्छा, जो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे वो लार्ज होने चाहिए और प्राइम होने चाहिए. तो ये हमारी जो कंडीशन है, ये एक माइलर रिबन टेस्ट होता है एल्गोरिदम. ये भी एक एल्गोरिदम होता है जो टेस्ट करेगा कि आपका जो आपने जो पी एंड क्यू सेलेक्ट किया है वो लार्ज है और प्राइम है. अगर लार्ज और प्राइम नहीं होते हैं तो फिर वो आपको दोबारा से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. So after this test, we will move towards the actual computation, which is n and phi of n. N calculate करने के लिए we will multiply p and q, and then phi of n calculate करने के लिए we will multiply p minus 1 and q minus 1. After calculating these values, we will choose our public exponent, which is our public key. अच्छा, public exponent calculate करने की ये condition है कि आपका जो public exponent हो वो 1 से बड़ा हो और phi of n से छोटा हो. सही है. लेकिन अच्छा, फॉर एग्जाम्पल वी selected a number which is greater than 1 and lesser than phi of n, but in the next step when we calculate the GCD of both the numbers, which is the public exponent as well as the n which we calculated above, अगर दोनों का GCD 1 के इक्वल नहीं आ रहा है तो मतलब कि वो हमारा एक सही पब्लिक एक्सपोनेंट नहीं है. हमें दोबारा से एक ऐसा पब्लिक एक्सपोनेंट चूज करना पड़ेगा जिसका जीसीडी और एन का जीसीडी 1 आ रहा हो. अगर ये हमारी कंडीशन वेरीफाई कर देती है, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द प्राइवेट की कंप्यूटेशन. यहाँ तक हमारा पब्लिक की कंप्यूटेशन का प्रोसेस खत्म हुआ, देन कम्स द प्राइवेट की. प्राइवेट की का ये फॉर्मूला है हमारे पास. प्राइवेट की इज डोनेटेड विद डी एंड विच इज इक्वल्स टू ई इनवर्स, which is the public key. E is the public key. We will calculate the inverse of the public key and then mod of phi of n. So after this computation, we will return both the keys, which is public key returns with n and e, and the private key returns n and d. So this was all the flow, how will our key generation algorithm works. Now we will have a look on the actual pseudocode of the algorithm. So first of all, here is the function which generates RSA key pair bits. In this function, this is the whole key generation function. यहाँ पर हमारे पास p है and q है, which are generating large prime numbers.
सो लार्ज प्राइम नंबर्स जनरेट करने के बाद यहाँ पर कंप्यूटेशन होती है एन की एंड फाई ऑफ एन की। उसके बाद हमारे पास यहाँ हम पब्लिक एक्सपोनेंट चूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे ही हम इस लाइन पर आएंगे तो ये हमारा एक फंक्शन है अलग से जो चूज़ कर रहा होगा पब्लिक एक्सपोनेंट। अच्छा, पब्लिक एक्सपोनेंट चूज़ करने जैसे ही हम इस लाइन पर आए तो ये वाला जो फंक्शन है पब्लिक एक्सपोनेंट का, ये हमारा कॉल होने शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमने पब्लिक एक्सपोनेंट की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ली हुई है 65537। अच्छा, मोस्ट कॉमनली लोग यही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि एक ये आइडियल प्राइम और लार्ज नंबर है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकती है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो हमारी ई की वैल्यू है, मतलब पब्लिक एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है फाई ऑफ एन, ई और फाई ऑफ एन जो है वो इक्वल्स टू 1 है या नहीं है। उसके लिए हमने यहाँ पर व्हाइल का एक लूप इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है जिस जो चेक करेगा कि ई एंड फाई ऑफ एन आर बोथ नॉट इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होंगे 1 के तो फिर उसमें हमारी पब्लिक एक्सपोनेंट में 2 का इंक्रीमेंट होगा। फिर वो दोबारा चेक करेगा कि वो है या नहीं है उसके को-प्राइम, मतलब दोनों को-प्राइम होने चाहिए लाज़मी। उसके बाद ही वो रिटर्न करता है हमारा एक्सपोनेंट। अच्छा, देन यहाँ पर हमारे पास पब्लिक की हमने यहाँ एन और ई से सेट करा दी, प्राइवेट की भी हो गई। प्राइवेट की जैसे लाइक यहाँ पर ये प्राइवेट की का फंक्शन था। आफ्टर पब्लिक की कंप्यूटेशन चूजिंग आफ्टर चूजिंग पब्लिक की वी विल कंप्यूट प्राइवेट की। प्राइवेट की कंप्यूटेशन का एक यहाँ पर हमारे पास अलग से फंक्शन है जिसमें हमारे पास बेसिकली यूक्लिडियन एल्गोरिदम परफॉर्म हो रहा था जो मॉड्यूलर इनवर्स फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। तो यहाँ हम चेक कर रहे होते हैं कि जो डी है, लाइक हमारा जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि एक फॉर्मूला था हमारे पास जिससे हम डी निकाल रहे थे जो कि हमारी प्राइवेट की थी। तो हम इंश्योर करते हैं कि वो डी जो है ग्रेटर देन 0 हो, मतलब पॉजिटिव नंबर हो, और फिर हम उसमें 5 एन ऐड करवा देते हैं और फिर अपनी डी की वैल्यू जो होती है रिटर्न हो जाती है। यहाँ पर ये हमारे पास छोटा सा फंक्शन है ये टेस्ट करने के लिए कि जो पब्लिक की एंड प्राइवेट की हमने सेलेक्ट की है वो एक गुड पेयर है या नहीं, एंड देन we'll have the output if it's not. Now, this was a detailed algorithm, or we can say pseudocode of the algorithm. Now we will move towards calculating its time complexity. So over here, I've already calculated the time complexity, but like I will revise again. So generation of the random numbers, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 1, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट वी आर गोइंग टू हैव अ माइलर रिबन टेस्ट यहाँ पर, जिसमें हम ये भी चेक कर रहे होते हैं कि हमारा जो नंबर है वो लार्ज है और प्राइम है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n की पावर 4। सो यहाँ 2 दफ़ा हम ये परफॉर्म कर रहे हैं, इफ़ वंस फॉर p एंड देन फॉर q, तो दोनों की हमने सेम लिखी है। उसके बाद यहाँ हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, n इज इक्वल टू p इंटू क्यू। जैसे कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन जब भी हम कर रहे होते हैं तो उसकी n स्क्वायर होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देन फाई ऑफ एन की बात करें तो फाई ऑफ एन में हम क्या करें, एक दफ़ा 2 दफ़ा माइनस कर रहे हैं एंड देन 1 टाइम वी आर मल्टीप्लाइंग। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी माइनस माइनस की n n एंड मल्टीप्लाई कराने की n स्क्वायर। सही है। उसके बाद हम चूज़ कर रहे हैं पब्लिक एक्सपोनेंट। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमारा पूरा फंक्शन है तो हम यहाँ देखते हैं अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और फिर हम यहाँ पर उसको फाइनली लिख देंगे। तो सेट लाइक हमने ये चूज़ करी वैल्यू, तो ये इसकी 1 हुई। अच्छा, अब जीसीडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि ई ऑफ आई ऑफ एन जो है वो 1 के बराबर है या नहीं। जब तक ये हमारी लाइक वैल्यू जब तक हम चेक करते रहेंगे तो उतनी टाइम्स आइट्रेशन चलेंगी। तो उसकी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी लॉग मिनिमम ऑफ ई ऑफ आई ऑफ एन। ठीक है। उसके बाद अगर लाइक नहीं होती है तो इंक्रीमेंट हो जाता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1, देन सबकी 1 है। सेम गोज़ फॉर यहाँ पर जब हम कंप्यूट करते हैं प्राइवेट एक्सपोनेंट, तो जैसे ही हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द मॉड्यूलर इनवर्स, उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम वैसी ही होती है जैसे जीसीडी की होती है, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। तो उसकी भी लॉग मिनिमम ई एंड फाई ऑफ एन, एंड देन all these have the time complexity of 1s. So if we see the total time complexity of this algorithm and this algorithm, we will ignore the constants, and then हमारे पास जो बचेगा वो होगा log min e and phi of n। तो वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। उसके बाद हम पब्लिक की जो है यहाँ सेट करा रहे हैं, प्राइवेट की इनकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। बाकी ये सारी लाइंस जो हैं ये भी जस्ट चेक कर रही हैं, तो इनकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है। अच्छा, इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़। ये सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ मैंने ऐड करवाई हैं एज़ यू कैन सी, और एट द एंड वी गॉट अ रिजल्ट के हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है 21 प्लस 2n प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n क्यूब, नहीं क्यूब नहीं, पावर 4 प्लस 2 log min e and phi of n. So as we know that the largest or the highest growth function amongst all is the n power 4. So the upper bound is also the same, which we computed over here. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। सो यहाँ पर अगर एक ओवरव्यू लिया जाए कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, तो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक सेंडर है और यहाँ पर हमारे पास एक रिसीवर है। सेंडर जो है प्लेन टेक्स्ट भेज रहा होता है विद यूजिंग आरएसए इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इंक्रिप्शन की होती है, पब्लिक की होती है, जो इनक्रिप्ट कर रही होती है हमारा मैसेज यहाँ। देन दिस इज द कम्युनिकेशन चैनल थ्रू विच आर मैसेज इज गोइंग टू डिलीवर। देन वी हैव यहाँ पर आरएसए की डिक्रिप्शन परफॉर्म होती है रिसीवर से के पास पहुंचने से पहले। तो डिक्रिप्शन के लिए वी विल यूज प्राइवेट कीज, एंड देन जब डिक्रिप्शन परफॉर्म हो जाती है तो हमारा जो आउटपुट है वो प्लेन टेक्स्ट में रिसीवर वापस से एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है।
सो दिस इज द RSA इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ओवर हेयर हमने क्या किया कि पब्लिक की को n एंड e उसमें असाइन कर दिया वेरिएबल्स में। देन मैसेज, अच्छा फॉर मैसेज, अब मैसेज हमारे पास इन अ फॉर्म ऑफ बिट्स भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं। तो मैसेजेस को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम जो कंप्यूटेशन कर रहे हैं अपनी वो इंटीजर में कर रहे हैं, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन. So we will convert the message into integer and then I will assign the value to this variable m. फिर हमारे पास cipher text के लिए हम like this we will use this formula in order to convert the plain text to cipher text. Okay, यहाँ पर क्या हो रहा है कि modular exponentiation वाला जो हमारा function है वो कॉल करेंगे. इसमें क्या हम parameters पास करा रहे हैं m, e and n. m is the message which we converted to integer, e is the public key and n is the number which we calculated before where we multiplied p and q. Okay. सो यहाँ पर देन हमारा साइफर टेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा. नाउ अब हम RSA एन्क्रिप्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो असाइनमेंट करवाने की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होती है. देन मैसेज टू इंटीजर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n इसलिए क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स होंगे या जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी उनको कन्वर्ट करवाने के लिए हमें n टाइम्स ही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूटिलाइज हो रही होगी. उसके अलावा यहाँ मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन के लिए तो जब भी एक्सपोनेंट वैल्यूज़ पर हम जाते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है. then we'll have the cipher text output and then this. So यहाँ हम इसको प्लस करेंगे सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, तो एट लास्ट हमारे पास आएगा 3 + n + log n. तो यहाँ अगर देखा जाए कि लार्जेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक हाईएस्ट ग्रोथ फंक्शन किसका होगा तो वो n है ऑब्वियसली, क्योंकि n का जो ग्रोथ रेट है वो log n से ज़्यादा है, तो इसीलिए हमारा अपर बाउंड भी O of n होगा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के लिए. नाउ दिस इज द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम. अच्छा, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पैरामीटर्स में साइफर टेक्स्ट ले रहे हैं और प्राइवेट की. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जब भी हम इंक्रिप्शन कराते हैं तो हम प्लेन टेक्स्ट लेते हैं यहाँ एंड देन पब्लिक की, बट फॉर डिक्रिप्शन वी विल हैव अ साइफर टेक्स्ट एंड देन दी प्राइवेट की ओवर हियर. तो प्राइवेट की को हमने इन वेरिएबल्स में असाइन करवा दिया n and d which we also denoted before, and then decryption के लिए we will have the same formula of the modular exponentiation. यहाँ पर हम साइफर टेक्स्ट ले रहे हैं पैरामीटर्स में d and n. साइफर टेक्स्ट को जो है पब्लिक की जो हमारी सॉरी प्राइवेट की जो हमारी डी होगी उसकी हेल्प से एंड एन जो हमने पहले भी लिया था इंक्रिप्शन करवाते हुए, तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न करेगा वो मैसेज, बट मैसेज रिटर्न करवाते हुए भी इंटीजर टू मैसेज में कन्वर्ट होगा. हमारा जो लाइक क्योंकि हमने क्या किया था पहले इंक्रिप्शन करवाते हुए मैसेज को इंटीजर में कन्वर्ट किया था, अब इंटीजर से वापस में हम मैसेज में कन्वर्ट करेंगे ताकि जाहिर है जो रीड करेगा मैसेज उसको भी समझ आए. तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो प्राइवेट ये वाली इस लाइन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगी एज वी नो, और फिर मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन वाले की log of n होगी एंड देन इंटीजर टू मैसेज जितने इंटीजर्स होंगे उसके लिए हम करेंगे मैसेजेस और तो उसकी भी n होगी. सो द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस एल्गोरिथम डिक्रिप्शन एल्गोरिथम वाज 1 + n + log n, और यहाँ पर भी अपर बाउंड हमारा O of n होगा. अच्छा, अब हम आते हैं टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी जैसे हमने देखा था की जनरेशन एल्गोरिथम में थी 21 एंड दिस ऑल. उसके बाद इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में हमारी इतनी आई थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देन डिक्रिप्शन एल्गोरिथम में भी हमारी इतनी ही थी तकरीबन. अब हम हमने यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन की हुई है, सारी तीनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को प्लस किया हुआ है. प्लस कराने के बाद हमारे पास कुछ ये आउटपुट आ रहा था 25 + 4n + 2n² + 2n⁴ एंड 2 log min e and 5 of n एंड देन 2 log n. अच्छा, इन सब में से सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट हम अगर देखते ही बताएं तो वो है होगा इस वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, विच इज़ 2n⁴. सो यहाँ पर फिर RSA कंप्लीट RSA एल्गोरिथम का भी अपर बाउंड O of n⁴ होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइक हमने देख लिया कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है. सो इफ वी टॉक अबाउट द बेस्ट वर्स्ट एंड एवरेज केस एनालिसिस, सो वी रिड्यूस अ पॉइंट दैट कि सारी कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती हैं बेस्ट एवरेज वर्स्ट केस RSA एल्गोरिथम में ये सब डिपेंड करती हैं हमारे साइज ऑफ प्राइम नंबर पे, कि हम कितना बड़ा प्राइम नंबर ले रहे हैं. अगर हम बहुत बड़ा कोई लार्ज प्राइम नंबर जैसे हम जनरेट कर रहे हैं अब तो उसकी जाहिर है उसको कंप्यूट करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी इंक्रीज होगी, ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होगी. तो उस और अगर हम बेस्ट केस की भी बात कर लें कि हमारे पास हमने फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर ले लिया 2, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली बहुत ही कम होगी. तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड कर रही हैं ये हमारे प्राइम नंबर के साइज पर डिपेंड कर रही हैं, पब्लिक एक्सपोनेंट पर डिपेंड कर रही हैं जो हमने अज्यूम किया था 65537 जो ऑफन लोग यूज़ करते हैं. इसके साथ साथ प्राइवेट एक्सपोनेंट पर भी हमारी कुछ वैल्यूज़ डिपेंड करेंगी. सो ये सारी वो ये कि जितना लार्ज हमारा नंबर होगा उतनी ज़्यादा कंप्यूटेशनल होगी, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी. सो दिस वाज इट. आई होप यू अंडरस्टैंड the RSA algorithm and all the components of RSA algorithm. Thank you so much.